Good morning to all of you, class 10 students. Welcome to all of you in physics class. Okay, our running chapter in physics is magnetic effect of electric current. Okay, today we will discuss about magnetic field pattern. Okay, as you know that magnetic field patterns uh, uh, are three types. There are various types of magnetic field pattern. Important three types of magnetic fields. First one is magnetic field pattern due to a solenoid. Second one is due to circular loop, and third one is due to straight current carrying conductor. Okay, today we will discuss about the magnetic field patterns due to straight current carrying conductor. Okay, and listen carefully and watch carefully this video, and I would like to tell you that you must write in your physics copy. Okay, and then watch carefully. Here is the topic I would like to explain you here. The magnetic field lines around a straight conductor carrying current. This is the topic. This is the part of magnetic field pattern produced by current carrying conductor. Okay, this is the conductor, current carrying conductor. Current is passes through the wire, and magnetic field pattern. This is the shape of the magnetic field pattern. We have to discuss today importantly. Okay, okay. The magnetic field lines around a straight conductor carrying conductor are concentric circle. Concentric circle is the term of mathematics. All of you know about concentric circles. The circles having same center but different radius are called concentric circles. This is the center of the circle, and these are circles are different circles. Okay, radius are circles of different radius of the circle. So this is the picture of concentric circles. Okay, here is the given passes the details of here. We have a straight wire AB which passes through the horizontal cardboard sheet C. This is the straight wire AB. Suppose that this is the copper wire or aluminium wire and passes through this through the cardboard. Okay, this is the cardboard. Okay, this one is the cardboard. Okay, and AB is the straight current carrying conductor. Okay, and now it is given that the end of the wire AB are connected to a battery through the switch. End of the wire, these are the ends of the wire are connected through the battery. Okay, these are also in this is the first end, this is the second end, this is negative terminal, this is the positive terminal. Okay, and this is the according to the given picture, it is satisfied. It produces a, here is given that when current is passes through wire AB, as soon as current is passes through wire AB, then it produces a magnetic field around it. Magnetic field around, this is the magnetic field, the circular shape are the magnetic field around it. Okay, this can be shown by using a plotting compass M. This is done by the plotting compass N. Okay, this is the already circular shape is done, is prepared by the help of magnetic compass. Okay, this is also called magnetic needle. Okay, magnetic field lines are circular in nature. This is the magnetic field lines are circular in nature. Okay, and so this is the shape is concentric circle. Okay, the magnetic field patterns are in concentric circle. Now conclusion of this experiment is that the magnitude of magnetic field produced by a straight carrying conductor carrying wire at a given point is directly proportional to the current passing in the wire. It states that when the current is passes through the wire, the magnitude of the magnetic field, that is strength of the magnetic field, will increases when the amount of current will increases. So here is given it is directly proportional to the current passes in the wire. It states that therefore greater the current in the wire, stronger will be the magnetic field. Okay, as soon as current will increase, the magnetic field is stronger, and the strength of magnetic field is the more and more strength will be increases as soon as current of the amount of current will increase in this circuit. Okay, this is the circular, this is the shape of the circuit, electric circuit. Conducting wire is given. Okay, and now second one is it is inversely proportional to the
distance of the point from the wire. This means that inversely proportional to the distance of the from the wire. This is the wire, concentric circle. This is magnetic field. This one, it means that the nearest circle, the strength of the magnetic field nearest is the maximum, and the largest, this is the outside of this is the largest circle here is at this point of the largest circle will be the least strength, and the nearest part is the nearest circle has maximum strength. Okay, your greatest strength. Okay, this is states, second part is states that, and this is the details of the magnetic field pattern due to state current carrying conductor. Once again I would like to explain you, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक पैटर्न है, आकार। मैग्नेटिक फील्ड जब किसी सर्किट के अंदर प्रवाहित होता है तो कैसे, कितने शेप में आते हैं, तो 3 प्रकार का शेप उनका होता है, 3 प्रकार आते हैं। पहला शेप है, उसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहला शेप है आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा पैटर्न है, दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनॉइड, और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू, ये कहने मतलब क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम चुंबकीय जो क्षेत्र बनता है वह सर्कुलर लूप, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर, एक सर्कुलर, एक स्ट्रेट वायर में, एक लंबे वायर में स्ट्रेट जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, उसके अंदर से सप्लाई करते हैं हम लोग, प्रवाहित करते हैं किसी करंट को। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह, किस आकार का, किस शेप का बनता है, ये हम इस एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। तो देखिए हम लोग देखें क्या, ये एक्सपेरिमेंट को मैं बता दूं पहले। इसमें है क्या, एक कार्डबोर्ड है, ये बड़ा सा कार्डबोर्ड, देखना ये रेक्टेंगुलर शेप का ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के अंदर होल किया गया है, होल के अंदर से पास करें एक वायर, कंडक्टिंग वायर, जैसे मान लीजिए कॉपर AB है कंडक्टिंग वायर, ये पूरा ये कंडक्टिंग वायर है, ये रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टिंग वायर है। उसका एक एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरा एंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसे एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल AB डायरेक्शन में रहता है ये बिल्कुल। और फिर एक यहाँ स्विच लगाते हैं हम लोग, स्विच इसे की भी बोलते हैं हम लोग। और इसमें देखते हैं कि जैसे ही हम इसमें की स्विच ऑन करते हैं, स्विच करंट सप्लाई करते हैं, वैसे देखेंगे कि ये सर्किल की तरह बनता है, सर्किल अंदर में। सर्किल आप मैं बता दूं किस तरह का सर्किल बनता है, कैसे बनता है। एक मैग्नेटिक कंपास के सारे, मैग्नेटिक निडल भी कहते हैं, इसके सारे तैयार होता है। तो सबसे पहले इस पर हम लोग ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर में आयरन फिलिक्स, लोहे का बुरादा, इस पर स्प्रिंकलर करते हैं, छिड़क देते हैं। स्प्रिंकलर एक होता है, एक ये पात्र उसी में रखा होता है, वो छिड़क देते हैं। तो जैसे तैसा जिग जैग वे में पहले रहता है। जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं, तेजी से वो दौड़ दौड़ करके सर्किल बनते जाता है। ये जो वायर है, वायर के चारों तरफ बनते जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। और ये हम देख कैसे तेजी से बनाते हैं, कैसे, ये मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम मैग्नेटिक कंपास के सारे, ये हम मैग्नेटिक नीडल के साथ घुमाते हैं, जैसे जैसे वैसे आराम सर्कुलर, देखिए सर्किल शेप का बनते जाएगा। 3-4 सर्किल, 5 सर्किल ऐसे बनते जाएगा। और देखेंगे क्या कि ये सबसे नजदीक वाला जो सर्किल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ताकत होता है, उसकी मात्रा ताकत होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, ताकत सबसे अधिक नजदीक वाले सर्किल होता है, और सबसे कम ताकत होता है सबसे दूर वाला सर्किल, उस पर सबसे कम ताकत होता है उसका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है कंसेंट्रिक सर्किल तैयार, जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं तो ये कंसेंट्रिक सर्किल, हमने फिर बताया था इंग्लिश में भी आपको कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एक होगा और रेडियस अलग अलग होंगे। देख रहे हैं ये सर्किल कई तो 1 2 3 4 सर्किल बने हुए हैं और सबका रेडियस अलग अलग है, लेकिन सेंटर, सबका सेंटर कहाँ है, तो कंडक्टिंग वायर जो है हमारा, कॉपर वायर मान लीजिए या एल्युमिनियम वायर जो यहाँ इसी के चारों तरफ ही घूमता है, ये इस तरह का शेप बनता है। और एक दूसरी बात क्या, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर आप जान लीजिए। तो ये दिया हुआ है क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो क्षमता होती है, उसको डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट पासिंग इन द, इस वायर के अंदर, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जितना अधिक मात्रा में हम करंट सप्लाई करेंगे, उतना अधिक स्ट्रेंथ, उतना अधिक ताकतवर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये अधिक स्ट्रेंथ, अधिक ताकतवर, मजबूत होगा, ठीक है। और दूसरा है क्या कि ये जो सर्कुलर शेप आप देख रहे हैं, तो सबसे नजदीक में है, ये दिखा हुआ है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। ये जो वायर से
ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस है वो जितना अधिक होगा स्ट्रेंथ कम होगा। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ से यह सबसे अंतिम जो सर्किल है उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा तो स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, इसके बाद इससे भी कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये सबसे कम यहाँ होगा। सबसे नज़दीक वाला सर्किल है वहाँ पे सबसे अधिक स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस एक्सपेरिमेंट के सारे दो बातें हम पर निर्भर करते हैं, पता करते हैं। एक पहला तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमारा जो है किस शेप का आता है, कब, जब ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के अंदर जो बिल्कुल सीधे कंडक्टर जो है लगाते हैं, किसी कार्डबोर्ड के अंदर तैयार करते हैं, सर्किल सेट करते हैं हम लोग इसमें सर्किट, तो किस तरह का शेप बनता है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल बनता है, ठीक है, समकेंद्रीय सर्किल भी कहते हैं इसे हम लोग। कंसेंट्रिक सर्किल बनता है शेप सारे, ये हम दर्शाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट ये हम लोगों ने किया। और फिर आगे हम लोग नए वीडियो देखेंगे। कुछ सूचनाओं पर ध्यान देंगे आप। अभी ये जो वीडियो में बताया इसको अच्छी तरह से वॉच करेंगे, ये आगामी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। अभी हो सकता है, अभी एक चीज़ और सूचना जान लीजिए, 15 जुलाई से आपका प्रीडिक्ट टेस्ट 1 एग्ज़ाम है, इस पर ध्यान देंगे सारे लोग। और ये इसके लिए एक आप बिल्कुल टेस्ट कॉपी नहीं लेनी है आपको, इसके लिए कि मैं नोटिस किया हूँ, मैं एक पेपर का साइज़ दिया हूँ, जो कॉपी लंबी वाली कॉपी जो रहती है आपकी, उसके साइज़ का पेपर, आप पेपर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर के ऊपर लिख देना होगा प्रीडिक्ट टेस्ट 1 सब्जेक्ट जो है वो देना होगा, और उसके सारे आप लिखेंगे। और ये हर एक पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर आप ले लेंगे। जिस तरह वाला पेपर भी रूलिंग पेपर पे एग्जाम देना आपको, क्योंकि ये सुविधा होगी, आपको कॉपी खरीदेंगे हर विषय का तो अधिक खर्च होगा, इस कारण से आपको मैं ये बताया। और फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, क्लास टीचर भी सूचना देंगे आपको। तो ये 15 से आपका टेस्ट है, और सभी को इसमें शामिल होना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। शामिल नहीं हो पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी फिर आगे। इसलिए सब लोग, कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे भी नहीं आते हैं, लेकिन टेस्ट में सबको आना पड़ेगा, ठीक है। और वो फिर सूचना आपके सब्जेक्ट टीचर्स, आपके जो क्लास टीचर्स हैं, ये सूचना आपको देंगे। और आज के लिए इतना ही, और आप सबको ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये टॉपिक पढ़ने के लिए। टॉपिक को याद तैयारी कीजिए और लिख करके तैयार करके मुझे भेजिएगा, लिखने की मैं चेक करूंगा इसे, और अपने जो फिक्स कॉपी में से नोट कर लीजिएगा सारे लोग अच्छी तरह से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे